Well, students, see the one term which we have written in our notes in important section. Day before yesterday, when we were studying, somebody has asked me some question related to that thing which was already mentioned in note. See what we have written. When the regular dose of drugs or alcohol is suddenly stopped, the symptoms developed in body, which are commonly called as withdrawal syndrome. This thing I was telling, that if a person has become completely addicted of any drug, like many family members you can observe, they have become addicted towards taking bidi, cigarette or tobacco. In the morning they are bound to take that particular drug, otherwise there are different types of problems. I am very well known about this withdrawal syndrome while I was doing my research. At that time we were giving drugs to rabbits. Like, in my experiment was that for continuously 60 days I have to give different drugs to different to rabbits of different groups, and after 60 days suddenly we have to stop the dose of that drugs. So in after 60 days, when the dose of drugs was stopped, what I found, yeah, what we found, we and my, we means I along with my partner, that the rabbits who are normally having very cool and calm behavior, when we have stopped the dose of drugs, all of a sudden their behavior was becoming very much aggressive. Amit sir, Amit sir, इसको बंद कर. All of a sudden their dose was becoming very much, their behavior was becoming very much aggressive. That type of symptoms are seen in humans also. In different movies you can see that it, if all of a sudden dose of any drug is stopped, different types of symptoms are seen. Okay, that all symptoms have been included under the group withdrawal syndrome. Anybody is having any doubt? Withdrawal syndrome, No, sir. No, sir. ये विड्रॉल सिंड्रोम ठीक वैसा ही है कि अगर किसी को मोबाइल का एडिक्शन है, एंड इफ पेरेंट्स आर टेकिंग मोबाइल फ्रॉम हिम और हर, तो क्या होगा, ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना. That is called as withdrawal syndrome. Now come to next topic, that is psychotropic drugs. Psychotropic means what? Abhishek? Sana, Shreya Singh, Shreya Gupta. Psychotropic word is related to which thing? Sir, Brain. I can tell. Sir. Sir, the drugs which have very devastating effect on our brains or nervous system. Psycho And definitely means something related to brain, है ना. Brain. Brain. yes. Now come to day before yesterday somebody has asked one more question related to this. The problem will be solved in this topic. Come to the topic. The drugs which have depressing effect on the activity of brain are called as psychotropic drugs. Here we have clearly mentioned that which have depressing effect. Most of the case, if any person is in depression or if any sudden accident has occurred, so we used to give him depressing agent. Depressing agent means कि we try to minimize the activity of brain. हम ये ऐसी दवा देते हैं कि ब्रेन थोड़ा कम काम करे. थोड़ा कम काम करे मतलब बहुत ज्यादा सोचे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सोचेगा तो पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, है ना. इसमें 4 मेजर टर्म्स हैं. साइकोट्रोपिक ड्रग्स आर ऑफ 4 मेन टाइप्स. इसको जब हम पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो कि नींद की दवाओं में क्या होता है, दर्द की किसी ने पूछा था मुझसे, आई थिंक आकृति उपाध्याय है साक्ष, कि सर आई वेरी फ्रीक्वेंटली यूज टू टेक पेन किलर्स. वो पेन किलर्स कहाँ आएंगे, शायद इसी ने पूछा था. वेयर वी विल ग्रुप दिस पेन किलर्स, वी विल कम टू नो अंडर दिस हेडिंग. ओके, see 4 main types of drugs are there. First one is sedative and tranquilizers, second is opiate, third is stimulant, and another is hallucinogens. Alcohol. Now see what are these drugs. Sedatives and tranquilizers, by the name we can divide it like this.
This is clearly visible to everybody. Yes, sir. श्रेया Yes, गुप्ता, sir. ये किसी के घर में कुछ बिक रहा है भाई? That sound is coming. Sorry, sir. अच्छा, तुम ही बेच रहे हो? Yes, sir. क्या बेच रहे हो भाई? वो सब्जी वाला आया था. अच्छा, बंद कर दो उसको अपना माइक. Okay, is it visible, श्रेया? ठीक है. What Yes, about sir. audio video quality? It is going in proper way? Yes, sir. All is fine. Yes, sir. 3-4 days back, there was windy storm due to which there was little bit disturbance in net quality. Little bit on that physics day. We have not studied at all in physics, sir. That is He because was of only no. speaking. We were not listening anything. From here there was no much. There was not so much problem. But all of a sudden on Saturday again that windy storm has come and antenna has automatically got to its proper place. So today network is coming proper. God is with us. God is always with us. Okay. Is it visible clearly? Yes. Yes. Psychotropic sir. drugs, already I have told. Already I have told that psychotropic drugs means the drugs which have reducing effect on activity of brain. These are divided in 4 major groups. First one is, tell me, Sedative. sedatives and Sedative. tranquilizers. Yes. What about my handwriting? I think by using Sir, chalk, it's improving day by day. it is improving day by day. I don't know why. Sedatives and tranquilizers. Second is Opiate. opiate. Third is Stimulant. stimulant, and fourth one I am writing here. Hallucinogen. I think all these 4 or 5 words are completely new term for you. So listen it properly. Sedatives, what are these? Sedatives act on brain and produces a feeling of calmness and relaxation. Is it clear? If we are in depression or if we are in tension of anything, when we visit a doctor, they used to give us a particular medicine or drug. What is present, what is the chemical component present in that drug is sedatives. कि हमें बहुत सारी टेंशन है, उसके बाद भी अगर हमने ये दवा ले लिया तो we will feel relaxed. उसमें क्या है? Sedatives है. Okay? And what is difference? In higher dose, sedative causes sleepiness and tranquilizers reduces tension. I think it is clear. Tension. ठीक है, टेंशन Yes, या sir. परेशानी से हमें जो दवाइयां दी जा रही हैं, इसीलिए जो नींद की दवाइयां हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिडेटिव्स. अगर हम मेडिकल टर्म में बात करेंगे तो दैट मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर स्लीपनेस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिडेटिव्स. इससे हमें हल्का सा, आकांक्षा यादव भाग गई आगे से. सर साइड इफेक्ट्स भी है इसके. डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होगा. जो भी ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जस्ट वी हैव स्टडीड दैट if we will stop the supply of drugs, we will have to face the withdrawal syndrome. ठीक है? Yes. If a patient is there who has become regular addicted of taking sleep pills, means sedatives, and if we will not give that pills to that patient, maybe ki for 3 days, 4 days, 1 week he will not sleep. Okay? सर एक टर्म है यहाँ पे. Yes. सर हायर डोज क्यों दिया जाएगा सीडेटिव पर? सर लोअर डोज में भी तो वो काम करेगा ना. लोअर डोज में अगर हमें किसी को सिर्फ टेंशन को दूर करना है तो हम उसे लोअर डोज देंगे. ओके? बट अगर हमें ऐसा, हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला कि डॉक्टर सर मुझे नींद नहीं आती है, तो वो क्या करेगा? जो दवा हमें 0.1 mg की होनी चाहिए जिससे हमारी टेंशन कम होगी, उसी सेम मेडिसिन का वो पावर बढ़ा के 0.1 mg की जगह 0.5 mg कर देगा या 1 mg कर देगा, जो पेशेंट की जैसी कंडीशन होगी. ठीक है? इसको हमने यहाँ हायर डोज बोला. दवा वही है, लो डोज में जैसे अल्कोहल वही है. अगर हम थोड़ा सा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो एज पर आवर स्टडी इट इज गोइंग टू हेल्प अस
Again, I should repeat कि definitely alcohol is not good, but if somebody is taking in lower dose, so it is little bit helpful. And if we are increasing the dose, what happens? You all are knowing. Okay. Now come to next point. Opiate includes group of painkillers which reduces pain, reduces tension, lowers BP, etc. ठीक है. आकृति उपाध्याय, perhaps you have asked, sir, Yes, I sir. am taking painkillers frequently. तो तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि पेन किलर्स किस में आ रहा है, सीडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर्स में. सीडेटिव्स में तो नहीं, क्योंकि सीडेटिव से नींद आती है. पेन किलर इज ग्रुप्ड अंडर ट्रैंक्विलाइजर्स यानी पेन किलर्स. ठीक है, और इसका भी एडिक्शन होता है. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Morphine is a painkiller as well as sedatives which is given to patient who have undergone surgery. अगर किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, in that case we used to give him morphine. Morphine has both the effect. It is working as sedative. यानी morphine जो है sedatives का काम कर रहा है. इससे क्या होगा? What will happen? सर उसको नींद आएगी. उसको आसानी से, उसकी सर्जरी भी हुई है तो उसे नींद आएगी. और ट्रैंक्विलाइजर्स में सर्जरी की वजह से जो उसे पेन फेस करना पड़ रहा है, he will get relief in that also. Okay. So, morphine works as both sedatives and tranquilizers. Next, come to next topic. Heroin. ये वो हीरोइन नहीं है भाई, डांस करने वाली नहीं है, ये दूसरी हीरोइन है. It is the most dangerous opiate, which is also called as smack and is obtained from poppy plant named as Papaver somniferum. ठीक है, ये हीरोइन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मेनली तो ये नशे वाली चीज है, बट इट इज यूज्ड फॉर sedatives and tranquilizers also. Okay. Opiate name has been given from a family called as opium. Opium एक family का नाम है plant में, और उससे इसको बना दिया गया opiate. Okay. Come to next point. Stimulant includes those drugs which stimulate nervous system and makes a person active. ये सबसे commonly used होते हैं by the sports person. सुना होगा जिसको हम बोलते हैं doping. Anybody can tell me? Yes. इसमें many of you have taken physical also. Physical में doping पढ़ना भी Yes, होगा. sir. What is doping? Yes, sir. Sana. Doping is basically an illegal by doping we can we take some external drugs into our body which increases our metabolism and energy rate. हाँ, ठीक all है. this. Means कि anyhow our metabolism has been increased by the help of drugs, and due to metabolism we get more amount of energy to perform better. Okay. बहुत बार ऐसा सुना होगा कि सिगरेट पी के लोग पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है, या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में कि वो सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं. उसके पीछे भी यही रीजन है. ठीक है. Stimulants includes those drugs which stimulate nervous system and makes a person active. Come to next one. Mildest stimulant is caffeine present in tea, coffee and cold drinks. 2-3 days back I was discussing that tea, coffee and other things also comes under what? Addiction. Why? Because it is containing caffeine. उसमें caffeine है, जिसकी वजह से हमें होता है ना कभी सर दर्द हो. ये मैं अपने ऊपर जानता हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील हो रही है, कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी देर पे चाय पीना पड़ता है. द रीजन बिहाइंड इट इज दिस ओनली कि इट इज मेकिंग माय कंप्लीट सिस्टम लिटिल बिट एक्टिव. एनी डाउट एनीवन? No, sir. चलिए, कम टू नेक्स्ट टॉपिक. स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेंट इज कोकेन एंड एम्फेटामाइंस. कोकेन सुना होगा, तो बोलते हैं चरस, बहुत सारी फिल्मों में ये चलता है. Yes. ठीक है, दैट इज कोकेन. कम टू नेक्स्ट. कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एराइथ्रोजाइलम कोका. ये एक प्लांट है, कॉमनली ये गांव वगैरह में भी मिलता है, बट हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. sir. Wait, let me finish. Hallucinogens. Afterwards, I will give time. Today we are having the proper time. Come to next. Hallucinogens includes those drugs which change the feeling and thought of person. What does it mean? Feeling and thought.
एनीबडी? हाँ सर, मूड बदल देता है और मूड बदल देता है मीन्स क्या? Means if we are in stress, then it will reduce our stress and make us feel good. हाँ, definitely it is correct. It changes our mood. If we are in depression, we are in stress. नंबर कम आ गया है, बहुत परेशान है, कोई छोड़ ओढ़ के चला गया है, ले लेंगे इसको, बस लगेगा कि नहीं नहीं सारी दुनिया तो हमारे साथ ही है, सना मजा आ गया, है ना रश्मि? समझ में आ रहा है? यस सर। कि हम जिस चीज को भी लेके परेशान होंगे, जब हम स्टिमुलेंट सॉरी हेलुसिनोजेंस ले लेंगे, तो वो फीलिंग हमारी जो निगेटिव की तरफ थी वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट होगी। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन कि ड्रग्स से सारी चीजें अब तक जो हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिन में सब अच्छा ही पढ़ रहे हैं, बट डेफिनेटली ड्रग्स आर नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इफ वी आर हैविंग एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, in that case if we visit doctor, so that psychotropic drugs have been divided in different categories। वो डॉक्टर देखेगा कि इनमें से कौन से साइकोट्रोपिक ड्रग्स की हमें जरूरत है। ओके, कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अ प्लांट्स नेम कैनबिस सैटिवा, इसी को धतूरा बोलते हैं। शंकर जी को ये सब चढ़ता है भाई, जो शंकर जी के भक्त हों सिर्फ यही सब चढ़ता है, भांग धतूरा, और इसीलिए शंकर जी के भक्त भी ज्यादातर लोग नए उम्र के ही लोग हैं। कभी बोलबम वाला देख लो जत्था, उसमें 50+ 60+ वाले तो कोई जाते ही नहीं है, सारा जो दारोमदार है ये यंगस्टर से उठा रखे हैं। तो मे भी कि उसके पीछे मेजर रीजन यही हो कि ये सारे साइकोट्रोपिक ड्रग्स ही उनके प्रसाद हैं। ऐसे लेंगे तो घर वाले मारेंगे, प्रसाद के रूप में ले लेंगे सीला तो मजा आ जाएगा, है ना? ओके, सी अ प्लांट नेम Cannabis sativa produces cannabinoids which is used along with the leaves and other parts of different plant to produce चरस, गांजा, भांग, अफीम, सब हमने लिखा है, ठीक है? यानी मेजर ड्रग्स जो शंकर जी वाले हैं वो किस में आते हैं? हेलुसिनोजेंस में। देखा होगा भांग वगैरह लोग होली वगैरह में भी कंज्यूम करते हैं। भांग इज नथिंग, इट इज सिंपली अ प्लांट प्रोडक्ट। ये जितने भी नशीली चीजें हैं मैक्सिमम ऑफ देम आर प्लांट प्रोडक्ट। एंड लास्ट टॉपिक इज LSD, lysergic acid diethylamide. It is the most dangerous hallucinogen which if taken 1 microgram per kg of body weight may damage nervous system। ठीक है, कि अगर इसका थोड़ा भी डोज ज्यादा हुआ, सना yes sir, better you if you are feeling sleep no take proper rest। no sir, it's okay। ठीक है, अगर इसमें LSD का डोज थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो हमारा नर्वस सिस्टम, अगर कभी ऑपरेशन होता है तो एक वर्ड यूज होता है एनेस्थीसिया। एनीबॉडी इज नोइंग व्हाट इज एनेस्थीसिया? yes sir, यस it सर। is a patient वेट before वेट वेट, आकृति टेल मी एनेस्थीसिया। यस सर। एनेस्थीसिया क्या है? सर ये बॉडी को पूरी तरह पैरालाइज कर देता है, और जब भी सर्जरी होती है तो ये फीलिंग नहीं होती कि हमें दर्द हो रहा है, मतलब वो बॉडी के फीलिंग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। दीक्षा, Partially paralyzed. पर्टिकुलर एरिया पे। दीक्षा नाश्ता कर लो भाई। Yes, Why you are sir. eating your nails? no sir, Should I show you recording? From last 2-3 minutes continuously you are busy with your nails। no sir, बस अब यही अच्छा है कि सामने नहीं हो, घर पे हो, नहीं तो तुम लोगों को तो मैं एकदम सीधा रखता। जो बताया ठीक बताया, थोड़ा सा गड़बड़ उसमें हो गया। इसने बताया कि ये हमारे बॉडी को पूरी तरीके से पैरालाइज करता है। पूरी तरीके से नहीं, इट सिंपली पैरालाइजेज आवर बॉडी पार्शियली। पार्शियली मींस कि पैरालाइजेज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी जहां पर हमें सर्जरी करनी होती है। ठीक है, सलोनी, आदर्शिका, शालिनी, मंतशा वीडियो ऑन करो वरना ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर दूंगा तो दूसरे किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। बार बार मुझे एक ही बात बोलनी पड़ती है। ओके, so that is called as anesthesia। that anesthesia is grouped under LSD। anesthesia के लिए बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिनकी संख्या आज भी बहुत कम है।
देने को तो कोई दे देता है, बट ऐसा नहीं है। उसके जो डॉक्टर्स हैं, अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो अलग से एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर्स आते हैं। सपोज करो हमें पैर में अगर ऑपरेशन कराना है तो एनेस्थीसिया हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दी जाती है जनरली, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पहले तो उस पार्ट को आइडेंटिफाई उन्हें करना है कि द नर्व्स विच इज सप्लाइंग ब्लड एंड अदर थिंग्स टू दैट पर्टिकुलर लेग, और फिर वहां पर हम एनेस्थीसिया देते हैं। अगर ऐसे हमने एनेस्थीसिया दे दिया तो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा भी ज्यादा हो गया, जितना डोज रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया, तो ऐसा केस हो सकता है कि उस पर्सन का नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए, यानी वापस से वो कभी भी सोचने समझने के लायक नहीं होगा। एनीबॉडी एनी डाउट? यस सर। सर ये इंजेक्शन के थ्रू ही दिया जाता होगा ना? एनेस्थीसिया इंजेक्शन से देते हैं कमर में, या ऐसा कहें कि रीढ़ की हड्डी में, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया, तो वो रीढ़ की हड्डी का इंजेक्शन ही क्या है? एनेस्थीसिया है। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ यस, नाउ दिस इज ओवर, यू मे आस्क योर क्वेश्चंस। सर हमने मतलब एक जगह सुना था कि जो एनेस्थीसिया जब वो दिया जाता है, तो अगर बाय चांस सर्जरी के टाइम अगर पेशेंट को होश आ जाए तो सर वो ना बोलने में एबल रहता है, ना हाथ पैर हिलाता है, मतलब वो जगा रहता है लेकिन उसे फीलिंग नहीं होती कि उसे ऑपरेशन हो रहा है। एनेस्थीसिया में पेशेंट को कभी भी बेहोश नहीं करते हैं एनेस्थीसिया देके, ठीक है। ये बहुत पहले ऐसा करते थे कि हम पूरे पेशेंट को बेहोश कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब पैर का ऑपरेशन होता रहता है और पेशेंट के कान में हेडफोन लगा दिया जाता है, वो गाना सुनता रहता है, उसे पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का असर बॉडी पे कितनी देर होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डोज ऑफ एनेस्थीसिया। इसीलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टू गिव एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट आर देयर। उन्हें पता है कि अगर पैर का ऑपरेशन है तो कितना टाइम लगेगा, और अगर इतना टाइम लगेगा तो हमें इसे कितना एनेस्थीसिया देना है, ठीक है। सोनू, सर कुछ लोगों पे असर नहीं करता है सोनू, शायद। सोनू जरा वीडियो ऑन करो, वीडियो तो ऑन है। यस सर। रुको, दिख नहीं रहे हो। सोनू कहाँ गया? सर नेटवर्क वीक है। रुको रुको, कुछ दिखा है मुझे तुम्हारे में, तब तो बोल रहा हूँ ना। तुम्ही को देखना है, मुझे नेटवर्क तो आएगा ही। बंद कर दिया क्या वीडियो ही? सर ऑन है। हाँ, थोड़ा उसकी वीडियो ऑन है सर, आ जरा रही है। बाल दिखाओ तो। बाल सही है सर उसका। दिखाओ जरा, ऐसे घूमो, कान के ऊपर का बाल इधर दिखाओ। इधर इधर सुनो, इधर इधर, उल्टे साइड जरा उधर घुमाओ, उधर घुमाओ जो। दूसरे साइड सुनो। अच्छा, हनी सिंह बने हो ना? आओ तुमको बताते हैं, स्कूल आ जाओ। आओ तुम्हारा सब हनी सिंह निकालता हूँ। चलिए, नाउ नेक्स्ट डाउट, आस्क मी। सही हो जाएगा। सर एक और डाउट है। हाँ यस। सर यहाँ पे एक बुक में पेज नंबर 159 पे पैराग्राफ है सेकंड, जो कैमनॉइड्स होते हैं। रिपीट अगेन, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, सांस लेके बीच बीच में। रिपीट अगेन। सर कैनाबिनॉइड्स, yes sir, group of chemical which interact with cannabinoid receptor present principal in the brain। सर जितने भी ड्रग होते हैं उनका रिसेप्टर हमारे ब्रेन में कैसे प्रेजेंट होगा। हाँ, फॉर एवरी, नॉट ओनली फॉर ड्रग्स, इफ वी आर टेकिंग एनीथिंग, एनी मेडिसिन, लाइक सपोज अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल फूड का ही लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, so different enzymes are present. If we are taking protein, for that different enzymes are present. In the same way, if we are taking any drugs in our body, to receive that drugs and to act particularly as per that drugs, different receptors are present in our body. Okay? सर कैसे मतलब रिसेप्टर प्रेजेंट करते हैं? ड्रग तो मतलब बाई चांस ही कोई लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई लेता है, तो सर उनमें रिसेप्टर जो नहीं लेता उसमें प्रेजेंट होंगे। जो नहीं लेगा उनके में वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, बट दे विल बी इन इनएक्टिव स्टेज। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन, अलग अलग सेंस ऑर्गन है। अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो माइक म्यूट करो सारे लोग।
अगर कोई चीज सुनाई नहीं दे रही है, इट मीन्स व्हाट, कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर का वो पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम तो है, लेकिन जो चीज है वहां से कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं। वैसे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, अगर वो पर्टिकुलर ड्रग या वो पर्टिकुलर थिंग हमारे बॉडी में एंट्री करती है तो रिसेप्टर्स उससे बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर ज्यादा हम लोग मान लीजिए पेन किलर्स खाते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? फर्स्ट साइड इफेक्ट इज दैट कि वी विल बिकम कंप्लीटली एडिक्टेड, हम एडिक्टेड हो जाएंगे। पहला तो क्योंकि हमने अभी जाना कि पेन किलर्स में जो केमिकल हैं वो नशीले केमिकल्स हैं, दे विल मेक अस एडिक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि द कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट नेचुरली अगेंस्ट दैट पेन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, हमारे बॉडी की जो नेचुरल क्षमता है उससे लड़ने की वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हम अपने बॉडी के सेल्स को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो उससे इनकाउंटर करे। जरा सा हमें प्रॉब्लम हुई, हमने तुरंत क्या ले लिया? पेन किलर ले लिया। इससे क्या होगा? डे बाय डे हमारे बॉडी की कैपेसिटी कम होती जाएगी। इसलिए कभी भी, नॉट ओनली फॉर पेन किलर्स, इन एनी केस यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम, एटलीस्ट वेट फॉर 1 or 2 days, 1 या 2 दिन अपने इम्यूनिटी को उससे लड़ने देना चाहिए। लाइक फ्रॉम लास्ट 2-3 days आई वाज हैविंग फीवर, बट yesterday night I was bound to take medicine because today I have to take class. तो 2-3 दिन तो मैंने इम्यूनिटी को लड़ने दिया, बट रात में मुझे ऐसा लगा कि अगर रात को दवा नहीं लेंगे तो मे बी कि सुबह क्लास लेने में मुझे प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मेडिसिन। तो ये सबको करना चाहिए, क्योंकि हम जितना अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ही ये है कि लेट द इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन और एंटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक वर्ड है यूफोरिया, उसका मीनिंग क्या होगा? यूफोरिया का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अच्छे से नहीं सोच पाना, जिसको हमें यूफोरिया मतलब चक्कर आना भी होता है। नेक्स्ट। सर एनेस्थीसिया का कुछ लोगों पे असर नहीं पड़ता है। वेट रश्मि आस्क। सर एनेस्थीसिया का कुछ लोगों पे असर नहीं होता है, ऐसा क्यों? एनेस्थीसिया का बिल्कुल असर होगा अगर एनेस्थीसिया प्रॉपरली दिया गया है तो, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यार बाकी लोग माइक बंद करो, बहुत आवाज आ रही है, फिर मैं म्यूट कर दूंगा सबको। अगर एनेस्थीसिया देने के लिए स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो रेगुलर प्रॉपर डोज में देंगे तो डेफिनेटली एनेस्थीसिया विल वर्क। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर आयुर्वेद की दवा लेते हैं तो वो भी एडिक्शन में आएगा? आयुर्वेद की दवाओं में जनरली अगर कोई ऐसी दवा है जिनमें ये चीजें मिक्स हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनमें जो प्लांट प्रोडक्ट्स में जिसमें इनको मिक्स करते हैं, तो कोई भी दवा एडिक्शन में तब आएगी जब हम कंटिन्यूअसली उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर ए शॉर्ट टर्म अगर हम डिप्रेशन में हैं, हमने 1 महीना 2 महीने का एक कोर्स किया, ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो वो एडिक्शन नहीं है। च्यवनप्राश हम डेली लेते हैं सर, इट विल इंक्रीज अवर इम्यूनिटी। च्यवनप्राश अगर हम डेली लेते हैं तो दैट कंटेन्स द मिनरल्स और एलिमेंट्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, वो एडिक्शन में नहीं आएगा। हाँ सर, अगर उसी च्यवनप्राश पे किसी की बॉडी डिपेंडेंट हो जाए, जैसे अगर वो च्यवनप्राश लेना बंद कर दे, हाँ, तो उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगे रिवर्स ऑर्डर में, तो उसका नहीं एडिक्शन करेगा, हम बोलेंगे? नहीं करेगा। अगर करेगा, अगर ऐसा केस होता तो हम ये कहें कि सर किसी की बॉडी पानी पे डिपेंडेंट हो जाए, नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी हैं विच आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग ब्लॉक, दे आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक या बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ आवर लाइफ मींस सेल्स। तो जो बिल्डिंग मटेरियल्स होंगे उनकी अगर कमी होगी तो मे बी कि जो सेल्स का सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, कमजोर पड़ जाएगा तो हम जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे, इम्यूनिटी की बात करें तो। बट वो चीजें ऐसी नहीं है जिसपे हमारी बॉडी की डिपेंडेंसी हो जाए। डिपेंडेंसी के लिए दैट थिंग हैज टू बी सम इफेक्ट डायरेक्टली विद द ब्रेन। जब तक कोई चीज ब्रेन से डायरेक्ट इफेक्ट में नहीं आएगी तब तक हमारी डिपेंडेंसी उसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मैंने एक मोबाइल का एग्जांपल लिया, मोबाइल हम खा नहीं रहे हैं लेकिन उसको मैं बार बार एडिक्शन में कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इट इज हैविंग सम इफेक्ट ऑन ब्रेन ऑफ सम पर्संस, कि अगर मोबाइल हटा दिया गया तो खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसको हम एडिक्शन में डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वंस एक बार हम हॉस्टल डॉक्टर सर के पास ना वो लेने पेन किलर लेने गए थे,
Yes. So Amit sir was sitting there and he told that don't take painkillers. It will lead to cancer. Sir, what was that? It will lead to cancer. Not it will lead to cancer. The major effect of painkiller is on our liver. ठीक है? Liver का बहुत सारा काम हमने we have studied related to digestion. 3 minutes are remaining. Let me tell it very clearly that whatever the drugs, और ऐसा बोलते हैं कि दारू पियेंगे तो लीवर खराब हो जाएगा. ऐसा भी सुना होगा कि जो भी चीजें हम ड्रग्स के रूप में ले रहे हैं, it is going to damage our liver. Why? Because one of the most important function of liver is detoxification of drugs. Drugs को detoxify करना. Let me write it. One of the most important function of liver is detoxification of drugs. Drugs को detoxify करना means कि whatever the harmful effect that particular drug has to produce on our body, our liver tries to minimize that damage. ठीक है? अगर हम ऐसा कहें कि कोई ड्रग्स है जिसमें 10 mg कोई केमिकल कंपोनेंट है और ये 10 mg हमें नुकसान पहुंचा रहा है या 1 mg भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस 10 mg को लीवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करने का मतलब कि अपने सेल से उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है. ठीक है? इसलिए किसी भी ड्रग्स का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है हमारे बॉडी पे वो किस पे होगा? लीवर सेल्स पे. बिकॉज अगर हमने ड्रग्स लिया तो उस केस में हमारे लीवर सेल्स को अपने क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ता है. ठीक है? और अगर किसी से हम जरूरत से ज्यादा काम कराएंगे तो स्लोली एंड स्लोली व्हाट विल हैपन? इट्स फंक्शन विल It will damage it. ऑन डैमेजिंग और डिक्रीजिंग. Reduce. यस सर यस. ये फैटी लिवर सिंड्रोम्स के वजह से जो डिजीज होता है सिरोसिस. उसको किरोसिस बोलते हैं ना सर. हाँ. तो इसमें क्या होता है जनरली? फैटी लीवर मींस नाम से समझ में आना चाहिए कि इसमें लीवर का जो साइज है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. फैटी लीवर सिंड्रोम कब होगा? जब हम जरूरत से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं. तो शायद वी हैव रिटन इन आवर नोट्स आल्सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड. अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एसिटल्डिहाइड बाद में यूज होता है फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी. इसीलिए अल्कोहल पी के हम थोड़े एनर्जेटिक महसूस करते हैं. तो ये एसिटल्डिहाइड जब ये प्रोड्यूस होता है तो दिस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन द सेल्स ऑफ लीवर ओनली. लीवर सेल्स में ये स्टोर होता जाता है जिसकी वजह से लीवर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ओके? बढ़ जाएगा. And that is called as fatty liver syndrome. Now time is over. If any more doubt will be there, we will continue it in next session. Today I will send notes of one more chapter. Perhaps I have sent, I don't know. So which chapter? What chapter, sir? Next chapter. The next Just chapter next is chapter of this. I will send it the notes. Strategies of enhancement in food production. Before my next Okay. class, write first 2 pages of that notes in front of you should be there. Okay? So that we can study it properly. And if doubt will be there Tomorrow related to this only. chapter, whenever my next class is there, I don't remember the timetable. If tomorrow is there, so I will send it right Tomorrow now. it is. हाँ, तो today at least you should write first 2 pages of that chapter. Okay? If any doubt will be there in this chapter, sir. it will be resolved in next session. Okay, thank you everybody.